Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fine. Student, take out your rough copy and pencil, and when you are watching the video, then note down the important points. And even student, if you have any doubt to the related topic, note down your doubts and you can ask your doubt in online doubt session. So student, in our previous video I explained you evaporation, what is evaporation and what is condensation. Is it clear? Evaporation and condensation. So student, what is evaporation? Evaporation and condensation, both the processes are opposite to each other. Is it clear? In evaporation, what water changes into? What's happened in evaporation? I underline this. Water on heating water on heating changes into water vapor, Is it clear? Now see the process of condensation, it is opposite of evaporation. What happens in condensation? Here in the process of evaporation, water on heating changes into water vapor, and process of condensation is opposite of evaporation. Now see condensation. Here we have, in evaporation we have water, and on heating water changes into water vapor. This process is known as evaporation. Now student, see in condensation what we have? Water vapor. We have water vapor. And what happened here? On cooling changes into water. Is it clear? In evaporation we have water, and on heating it changes into water vapor. And in the process of condensation, what's happened? What you have? Water vapor. And what happened? On cooling. In evaporation, on heating मतलब गर्म करना, cool मतलब ठंडा हो जाना. Is it clear? So on cooling it changes into water. So this process is known as condensation. Now student, today I explain you water cycle, and see the two process. There water cycle, the cycle of change of a water. What is water cycle? Water cycle today
student today topic is today topic is water cycle. So student, the cycle of the cycle of the cycle of change of water in nature is called a water cycle. Is it clear? See, the cycle of change of water in nature is called it water cycle. Already I explained you student that the three forms of water are solid, that is ice, liquid, that is water, and gas form is means water vapor. So what is water cycle? The cycle of change of water. मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, वाटर वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है. इज इट क्लियर? दैट वाटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और वाटर के जो फॉर्म में जो चेंजेस हो रही हैं, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. दैट इज नोन एज वाटर साइकिल. ओके, नाउ सी द चेंज फॉर्म ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Solid form is ice, liquid form is water, and gaseous form is water vapor. Gas form is a water vapor. So the cycle of change of water in nature. अब आपको समझ में आ गया ना, वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है. और जो नेचर है, इसमें जो वाटर की जो फॉर्म चेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है वाटर, यही आपका क्या है? दैट इज ए वाटर साइकिल. यही आपका क्या है? वाटर साइकिल. इज इट क्लियर? नाउ सी, now student, let us see the two process which take place in water cycle are due to which the water is changing from one form to another, that is evaporation and condensation. That is evaporation and condensation. That is evaporation and condensation. These are the two process due to which these changes of form of a water take place. That is known as water cycle. इवापोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, इसी से आपकी वाटर साइकिल कंटिन्यूअस हो रही है. इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, लेट वन मोर टाइम डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. आपको इतना समझ में आ गया ना, जो वाटर साइकिल है, मतलब वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, इसी साइकिल को वाटर साइकिल बोलते हैं. ठीक है? एंड द टू प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवापोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है. आगे ही बात समझ में? अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनिंग वाटर साइकिल, लेट वन टाइम डिस्कस what are the sources of water bodies on the earth.
sources of water bodies on earth. So what are the sources of water bodies, student? River, river, ponds, rivers, ponds, lake, sea, oceans. These are the sources of water on the land. ठीक है, ये different sources of water हैं on the land. Now water cycle, the change of water from one form to another, that is water cycle, and the two process which take place due to which water cycle is possible, that is evaporation and condensation. ये दो प्रोसेस ही होती हैं वाटर साइकिल में. इज इट क्लियर? एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज? दैट आर रिवर्स, पाउंड्स, क्योंकि तुम्हें वाटर कहाँ देखने को मिलता है? रिवर में, पाउंड में, लेक्स में, सी समुद्र को बोलते हैं, ओशन. ठीक है, ओशंस, ये वो जगह है जहां आपको वाटर देखने को मिलता है. अब लेट अंडरस्टैंड हाउ, what is the process of water cycle, how it take place in the nature. वाटर साइकिल मतलब वाटर की रिसाइकलिंग कैसे हो रही है नेचर में, अब ये अंडरस्टैंड करते हैं. इज इट क्लियर? Let student understand with the help of this diagram. Okay, so firstly I explained you, I told you that whole water cycle depends upon two process, that is evaporation and condensation. Evaporation means on heating water, water change in the form of a vapor, water changes in the form of a vapor. So how it happens, ये कैसे होता है? This is due to the sunlight. Here you will see the picture, it is sun, and we know that due to the heat of the sunlight, what is this? This is a water body. This is a water body. ठीक है, पिक्चर में देख लो. This is sun, clouds, mountain. This is a land area जहां आपको ट्री दिख रही है. ठीक है, और ये नीचे जो डैश डैश है ये क्या है? वाटर बॉडीज है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी अभी आपसे डिस्कस किया था वाटर बॉडीज क्या क्या है लैंड पे. रिवर्स,
ponds, lakes, sea, ocean. These are the water bodies. So student, due to the sunlight, okay, sunlight से क्या होता है, water heat होता है and it start evaporate. You are understanding what I am saying? Due to the light of the sun, sun की जब लाइट ये वाटर पे आती है तो वाटर क्या होने लगता है, सन की लाइट से। अगर आप बहुत देर सन में खड़े हो, गर्मियों के दिन में देखो बेटा, अगर हम खड़े हो जाते हैं रोड पे, घर से बाहर हैं, तो हमें बहुत गर्मी लगती है ना। वो गर्मी क्यों लगती है, सन की हीट से। सन की जो लाइट हमारे बॉडी में लगती है, हमारे बॉडी पे जब वो हीट टच करती है तो जैसे लगता है ना कि स्किन, हमारी पूरी स्किन जल गई, हमें बहुत अजीब सा लगता है, होता है ना। सन की हीट को आप फील करते हो ना। हम गर्मी के दिन में या सन की लाइट में बहुत देर खड़े नहीं हो सकते ना, एकदम से हमारी बॉडी हीट हो जाती है ना। इन द सेम मैनर ये चीज आप सबने फील की होगी। गर्मी के दिनों में हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा फील करते हैं। अगर हम घर से बाहर हैं या तो आप कभी, तो अगर आपकी बॉडी पे सन की लाइट पड़ रही है तो लगता है ना कि बहुत हीट, बॉडी एकदम गर्म हो गई, ऐसा फील आप करते हो ना। इन द सेम मैनर स्टूडेंट, व्हेन द सनलाइट, जब सनलाइट इस वाटर पे फॉल करती है तो इस वाटर को क्या कर देती है, हीट कर देती है। ड्यू टू द सनलाइट व्हेन दिस वाटर हीट, और वाटर हीट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री Celsius. This is the boiling point of water. So student, what happens, due to the sunlight, this water heated and it start changing in the form of a water vapor. ये किस फॉर्म में चेंज होने लगता है, सनलाइट की हीट से वाटर जब बॉईल होने लगता है, 100 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर होने लगता है, तो वो किस फॉर्म में चेंज होने लगता है, वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है। You are understanding what I am saying? Again I am repeating, due to the sunlight, due to the heat of the sunlight, water start evaporate. Evaporate means water start changing in the form of a water vapor. वाटर किस फॉर्म में चेंज होने लगता है, गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। सो व्हेन these water vapor, when the water is changed in the form of a gas, तो अब ये जो वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, आफ्टर दैट इट राइजेस अप इन द स्काई, क्योंकि इसका वेट क्या, लाइट हो गया, ठीक है। जब ये गैस फॉर्म में चेंज हो गया तो अब ये वाटर कहाँ में जाने लगता है, ऊपर स्काई में जाने लगता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? वन मोर टाइम, फिर से यहां से बताता हूं। ड्यू टू द सन हीट, what happened, water start changing in the form of a vapor, that we say water vapor. okay, तो यहां पे कौन प्रोसेस हुई, इवापोरेशन। वाटर चेंज हो रहा है किस फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में। तो ड्यू टू सनलाइट से वाटर हीट हुआ एंड इट स्टार्ट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। तो यहां कौन प्रोसेस है, इवापोरेशन। कौन प्रोसेस है, इवापोरेशन। See on the board child, due to the sun heat, water change in the form of a water vapor. वाटर किस फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। सो व्हाट इज द प्रोसेस, इवापोरेशन। इस प्रोसेस, क्योंकि इवापोरेशन मैंने आपको बताया था ना, ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू ए वाटर वेपर, दैट इज द रीजन। और मैंने एरो क्यों लगाए, यू आर एबल टू सी 3 एरोज ऑन द बोर्ड। दिस एरो इंडिकेट दैट ड्यू टू what happens after changing into a gas form, जब वो गैस फॉर्म वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं, उनका वेट लाइट हो जाता है,
तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगते हैं। कहां जाने लगे? इट राइजेस अप, इट राइजेस अप, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगते हैं वाटर वेपर बन के। इसलिए मैंने एरो की पोजीशन अपवर्ड की है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? दैट इज द रीजन द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ, और इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? इवापोरेशन बोला। इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट व्हाट हैपन नेक्स्ट। मैंने आपको क्या बोला? वाटर साइकिल टोटली डिपेंड अपॉन टू प्रोसेस, वन इज इवापोरेशन एंड अनदर इज कंडेंसेशन। वन इज इवापोरेशन एंड अनदर इज कंडेंसेशन। देखो इवापोरेशन तो आ गया, ड्यू टू सनलाइट द वाटर हीटेड, सन की लाइट से वाटर इतना ज्यादा हीट हो गया कि इट स्टार्ट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। तो इवापोरेशन की प्रोसेस तो आ गई, यहां तक आ गया आपको समझ में? इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सी, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा? जब ये वाटर वेपर राइजेस अप इन द स्काई, तो बहुत राइजेस अप इन द स्काई, तो ऊपर जाके, बहुत ऊपर जाके ये वाटर वेपर किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? कोल्ड एयर के। किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? कोल्ड एयर के। ठीक है, अब ये वाटर वेपर राइज हुए, इनका वेट हल्का हो गया, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर चले गए। सो व्हेन दे आर राइजेस अप in upward direction, then what happens? They come in contact with the cold air. अब जब वो ठंडी हवा के टच में आएंगे तो ये क्या होने लगे? कूल होने लगे। क्या होने लगे? ठीक है, अब जब ये कोल्ड एयर के टच में होने लगे तो ये क्या होने लगे? कूल होने लगे। अब जहां ऑन कूलिंग होता है वहां मैंने कौन प्रोसेस आपको बताई थी? ऑन हीटिंग मीन्स इवापोरेशन एंड ऑन कूलिंग मीन्स कंडेंसेशन। अब देखो यहां कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, सो दिस वाटर वेपर rises up high in the sky and after that when they come in touch with a cold air, अब ये cold air के टच में आए तो इनकी क्या होने लगी? कूलिंग होने लगी। इनकी क्या होने लगी बेटा? कूलिंग होने लगी। अब आप बताओ, कूलिंग होने पे अगर वाटर वेपर कूल होते हैं तो वो क्या बनता है? उससे स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मैंने एक एक्टिविटी में आपको बताया था कि आपकी मम्मी यूटेंसिल को कवर करके प्लेट लगा दी ऊपर और हीट कर रही है वाटर को, एंड व्हेन शी स्टॉप हीटिंग द वाटर, तो आप देखोगे व्हेन यू रिमूव दैट प्लेट ऑफ द यूटेंसिल, आप देखोगे उसमें स्मॉल 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 ड्रॉप ऑफ वाटर होते हैं। तो वो क्या होता है? जब वाटर हीट हो रहा होता है तो वो तो वेपर फॉर्म में चेंज होता ही रहता है, स्टीम फॉर्म में। लेकिन जब आपकी मम्मी ने हीट करना बंद किया, उसका टेम्परेचर लेस हुआ, मतलब वो कूल होने लगा, तो अगेन वो स्मॉल 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 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको प्लेट्स पे देखने को मिलेंगे। इन द सेम मैनर वाटर वेपर जब राइजेस अप इन द स्काई हो गया, ठीक है, और जब ये कोल्ड एयर के टच में आया तो इसकी क्या होने लगी? कूलिंग। व्हाट हैपेंस हियर? इसकी क्या होने लगी बेटा? कूलिंग होने लगी। जब ये कूल होने लगा तो इट मींस इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू स्मॉल स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर्स में चेंज होने लगा, और यही ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपका क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स। ये जो मैंने लिखा है ड्रॉप्स, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इज इट क्लियर? ये ही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये कौन सी प्रोसेस हुई? कंडेंसेशन हुई। क्या हुआ? कंडेंसेशन। वाटर वेपर की कूलिंग हुई, तो कूल होने पे वो स्मॉल स्मॉल पानी की बूंदे बन गई। ठीक है, सो स्टूडेंट दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर, आपस में ये जुड़ने लगते हैं। इज इट क्लियर? दीज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए क्लाउड्स। इसी से आपके क्या बने? क्लाउड्स बने। आई बात समझ में? इससे आपका क्या बना बेटा? क्लाउड्स बने। ठीक है, तो इन दिस मैनर द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, इस तरह क्लाउड बनते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है कि सन, ऐसा तो नहीं है सन की लाइट तो डेली आती है,
ठीक है, इवापोरेशन की प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहती है. सो व्हेन मोर एंड मोर, ठीक है, ये जब दीज स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स, अब जब इन क्लाउड्स में वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, ये वाटर को नहीं रोक के रख सकते, ठीक है, क्योंकि क्लाउड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, किसका, वाटर वेपर का. वाटर वेपर कूल्स हुए और स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स आपस में ज्वाइन करके क्या बना दी, क्लाउड्स बना दी. जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी क्लाउड्स में हो जाता है और क्लाउड्स उसे स्टोर नहीं कर सकता, अब क्लाउड उसे स्टोर करके नहीं रख सकता, तो वो किस फॉर्म में नीचे आने लगता है, इट स्टार्ट्स, ये देखो, इट कम इन द फॉर्म ऑफ ए रेन, it come in the form of a rain. Understanding, student? When the clouds are unable to store more water, then what happen, due to heavy weight, it start coming again to the ground in the form of a rain. So बेटा आप इस प्रोसेस को देखो, वाटर साइकिल की, वाटर की रिसाइकलिंग हो रही है. देखो वाटर कहाँ से गया था, ग्राउंड से ही गया था ऊपर, और ऊपर से रेन से नीचे आ रहा है. आप देख लो रिसाइकिल हो रहा है पूरा वाटर. और व्हाट आर द टू प्रोसेस ऑन विच वाटर साइकिल रन, दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. एंड इवन स्टूडेंट दोज एरिया वेयर द टेम्परेचर इज वेरी, जहां बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठंड होती है, तो वहां पे जैसे जहां बहुत ठंड नहीं होती है वहां वाटर नीचे किस फॉर्म में आता है, रेन फॉर्म में आता है, ठीक है. और जहां जो ऐसे एरिया है जहां क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, सो इन दैट एरियाज ये वाटर की जो ड्रॉप्स हैं ये फ्रीज कर जाते हैं, जम जाते हैं. जैसे आपकी मम्मी फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में वाटर को रख देती हैं, 2-3 घंटे बाद देखते हो वो एकदम सॉलिड आइस बन जाती है, सॉलिड आइस बन जाती है ना. इन द सेम मैनर इन द एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, ये वाटर की जो ड्रॉप्स हैं, जो रेन वाटर वाली ड्रॉप्स हैं, ये आपस में फ्रीज हो जाती हैं और ये किस फॉर्म में नीचे आने लगता है, स्नोफॉल सुना है, पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, सुना है बेटा, पहाड़ों पे बर्फ भी गिरती है, तो ये पानी की बूंदें फ्रीज हो जाती हैं और ये स्नो बर्फ के रूप में नीचे आने लगती हैं. दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल. वन मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इसको. स्टार्टिंग कहां से हुई थी वाटर साइकिल की? सनलाइट से. ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट वाटर स्टार्ट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर. और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इवापोरेशन. ठीक है. व्हेन इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर इट बिकम्स वेरी लाइट, क्योंकि गैस फॉर्म में चेंज हो गया, उसका वेट बहुत लेस हो गया. एंड इट राइजेस इन द स्काई, ऊपर की ओर ये जाने लगा. एंड व्हेन इट कम इन द टच ऑफ ए कोल्ड एयर, जब ये कोल्ड एयर के टच में आया तो ये जो वाटर वेपर था वो क्या होने लगा? कूल होने लगा. वाटर वेपर कूल होने लगा. तो व्हेन द वाटर वेपर स्टार्ट कूलिंग, तो ये किस फॉर्म में? स्मॉल स्मॉल वाटर की ड्रॉप्स बनी और यही वाटर की स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ने आपस में ज्वाइन करके क्या बना दिया? आपका क्लाउड्स बना दिया. क्या बना दिया? आपका क्लाउड्स बना दिया. व्हेन देयर इज, अब जब बिग बिग ड्रॉप्स बन जाते हैं क्लाउड्स में, क्लाउड आर अनेबल टू स्टोर द वाटर. ठीक है, क्योंकि इवापोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस है. वाटर हीट होके वेपर फॉर्म में होके ऊपर जा रहा है और वो कंडेंसेशन हो रहा है, उसकी कूलिंग हो रही है, वो क्लाउड्स बना दे रहा है. ठीक है. लेकिन जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, ये वाटर को रोक के नहीं रख सकते, तो वाटर किस फॉर्म में? रेन फॉर्म में फिर से नीचे आ जाता है. ग्राउंड से वाटर ऊपर गया था और ऊपर से फिर क्लाउड से वाटर रेन के रूप में नीचे आ रहा है. सो एंड द एरियाज वेयर देयर इज वेरी कोल्ड क्लाइमेट, तो वहां क्या होती है? ये रेन की ड्रॉप्स क्या फ्रीज हो जाती हैं और ये किस फॉर्म में
क्लाउड से नीचे आती है इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो। आपने सुना होगा माउंटेन्स एरिया में बहुत बर्फ गिरती है। इज इट क्लियर? ड्यू टू कोल्ड वेदर। सो थैंक यू स्टूडेंट।